Hello dear friends, welcome to Padhai Se Dosto YouTube channel. In today's video session, we are going to discuss about the descriptive type test of uh, Department of Atomic Energies, Junior Purchase Assistant and Junior Storekeepers Level 2 paper. Okay, so this level 2 paper is of 100 marks and time allotted for this paper is 180 minutes, that is a 3 hours. Okay, so this is a question booklet for level 2 paper. Okay, so this paper is particularly for junior purchase assistant and junior storekeeper. Okay, so let's discuss. So first four question we have already discussed in last two video sessions. If you didn't watch those video sessions, then I will recommend you to watch those video sessions. So you will get the link of those video session in description box. So do watch those video first and then continue with this particular video. Okay, so our question number 5 over here is fill up the ब्लैंक्स विथ प्रॉपर आर्टिकल्स। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, जो आर्टिकल्स होते हैं ए एंड दी। ओके, सो ये तीन जो आर्टिकल्स होते हैं, आपको पता है कि ये आर्टिकल्स हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे पांच कुछ सेंटेंसेस दिए दिए हैं जो कि अलग अलग सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसके सामने हमें आर्टिकल का यूज़ करना है। सो यू हैव टू चूज प्रॉपर आर्टिकल ओवर हियर। ओके, तो ये आपको यहाँ पे करना है। 5 मार्क, 5 क्वेश्चन है, 1 मार्क का एक क्वेश्चन ऐसे 5 मार्क के लिए है। ओके, तो बहुत आसान टास्क है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आउट ऑफ मार्क्स भी स्कोर कर सकते हैं अगर उनको आर्टिकल के बारे में प्रॉपर पता हो तो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आई मेट डैश डैश यूरोपियन ऑन द वे। ओके, सो ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पे क्या आएगा, यूरोपियन। देखो, दो this particular word is starts with e and e is a vowel. Okay, but the pronunciation of this particular word is European, so here is a vowel, sorry, consonant. Okay, and in front of consonant we usually use the article a. Okay, तो a article का हम यूज करते हैं, तो इसलिए आई मेट अ यूरोपियन ऑन द वे, ये सही आंसर होगा। उसके बाद है बाय द साइड ऑफ द रिवर देयर इज डैश डैश होटल। ओके, तो देखो यहाँ पे जो होटल की बात हो रही है वो कहाँ पे स्थित है, या कौन से होटल की बात हो रही है जो कि रिवर के साइड पे स्थित है। वैसे तो शहर में बहुत सारे होटल होंगे, राइट, लेकिन यहाँ पे जिस होटल के बारे में बात की जा रही है वो एक स्पेसिफिक होटल है, यूनिक है। ओके, जो कि रिवर के साइड में लोकेटेड है। ओके, सो दैट्स वाई देर इज अ आर्टिकल दी, THE। ओके, सो बाय द साइड ऑफ रिवर देर इज द होटल। ओके, और दी होटल। नेक्स्ट वन, they run away when they saw dash dash one-eyed giant. Okay, so one-eyed giant. Though this particular word is start with O, that is vowel, but the pronunciation of this is one, right? One or V is consonant, so that's why there should be article A. Okay, so they ran away when they saw a one-eyed giant. Okay, उसके बाद देखो, he is carrying dash dash umbrella in his hand. Okay, so umbrella, the word itself starts with U and its pronunciation is also start with vowel, umbrella, a, right, a is a vowel, स्वर जिसे हम बोलते हैं, right, so that's why it is a an umbrella. So he is carrying an umbrella in his hand. Okay, then we have the next one, he got dash dash honorarium of rupees 5,000 ओनली। ओके, ये होनोरेरियम मतलब क्या होता है, मानधन जिसे हम बोलते हैं, राइट। कोई आदर से आपको कोई एक उपहार देता है, हॉनर इन टर्म्स ऑफ मनी, सो दैट इज अ होनोरेरियम, मानधन जिसे बोलते हैं। सो दो इट इज स्टार्ट विथ एच बट इट्स प्रोनाउंसिएशन इज हॉनर, honor, more perfectly honorarium. Okay, o, so o is a vowel in English, so that's why it is a an. He got an honorarium of rupees 5,000 only. So I hope guys it is clear to you how to use the proper article in different sentences. So let's move towards the next one, rewrite the sentence in correct form. Okay, यहाँ पर भी 5 सेंटेंस आपको दिए हैं, हर एक सेंटेंस 1 मार्क का है। सेंटेंस में कुछ रीअरेंजमेंट आपको करनी है और उसे एक प्रॉपर करेक्ट फॉर्म में लिखना है। सो 5 सेंटेंस, 1 मार्क का एक, ऐसे 5 मार्क के लिए 5 सेंटेंस है। पहला सेंटेंस देखो, वी हैव नेवर नोन अ सच सीवियर विंटर। देखो कुछ पढ़ने में ही गड़बड़ सा लग रहा है। वी हैव नेवर नोन
अ सच सीवियर विंटर, तो अ सच हम कभी यूज नहीं करते ना. वी हैव नेवर नोन सच अ विंटर, सच अ सीवियर विंटर. ओके. सो एक तुलनात्मक यहाँ पे दिया है कि उस तरीके का सीवियर विंटर हमें कभी देखा नहीं था. इस तरीके का ये सेंटेंस है, राइट. तो कहाँ पे आएगा ये सच और ये दो वर्ड्स है यहाँ पे, इनको इंटरचेंज करना है आपको सिर्फ. वी हैव नेवर नोन सच अ सीवियर विंटर लाइक दिस. ओके. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. पीपल कुड नो लॉन्गर टॉलरेट अ सो क्रुएल किंग. लोग बहुत दिनों तक ऐसे क्रूर राजा को टॉलरेट नहीं करेंगे. तो इस तरीके का ये सेंटेंस है, लेकिन कुछ उल्टा पुल्टा लग रहा है वो पढ़ने में ही, राइट. तो इसका सही कैसा होगा? नो लॉन्गर पीपल पीपल कुड टॉलरेट अ सो क्रुएल किंग. ओके. तो इंग्लिश में इस तरीके से उसका एक सही स्ट्रक्चर बनता है. नो लॉन्गर पीपल कुड टॉलरेट अ सो क्रुएल किंग. ओके. आई होप इट इज क्लियर टू यू. नेक्स्ट वन. देर इज अ फ्यू मैंगोज जस्ट लेफ्ट. तो ये जस्ट का हमें यहाँ पे सिचुएशन या उसका पोजीशन कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो देखते हैं सही क्या होगा. देर आर जस्ट अ फ्यू मैंगोज लेफ्ट. ओके. ये जस्ट हम पहले यूज करते हैं ना, जस्ट अ फ्यू मैंगोज लेफ्ट, बहुत कम आम वहाँ पे बचे हैं. ओके. तो इस तरीके से ये जस्ट पहले आ जाएगा यहाँ पे. ये बाद में दिया है तो वो पहले आ जाएगा, राइट. वी हैव अ लिटिल मिल्क ओनली फॉर अवर यूज. वी हैव अ लिटिल मिल्क ओनली फॉर अवर यूज. तो यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा मुझे भी कन्फ्यूजन है कि किस तरीके से इसको हम रख सकते हैं, लेकिन आई थिंक इट शुड बी लाइक दिस. वी हैव ओनली अ लिटिल मिल्क फॉर अवर यूज. ओके. ओनली अ लिटिल मिल्क, हमारे पास क्या है, सिर्फ थोड़ा सा दूध है हमारे खुद के यूज़ के लिए, ऐसा बोल सकते हैं. सपोज आप किसी डेयरी में जाते हो और उनको बोलते हो कि चलो आज कोई हमारे घर में बड़ा सा फंक्शन है, और उसी दिन सपोज बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि वो कोजागरी का होता है, राइट. तो डेयरी वाले ने बोल दिया कि यार हमारे पास तो दूध ही नहीं बचा, सिर्फ थोड़ा सा दूध है जो हमने हमारे खुद के यूज़ के लिए रखा है. सो हाउ ही विल और ही वुड से दैट पर्टिकुलर सेंटेंस. ओके. हमारे पास सिर्फ थोड़ा सा दूध बचा है दो, जो हमारे पर्सनल यूज़ के लिए हमने रखा है, तो ऐसा वो बोलेगा ना. तो इसी को आपको इंग्लिश में ट्रांसफर करके थोड़ा सा लिखना है. तो आई होप यू कैन प्रॉपरली रीऑर्गेनाइज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस. ओके. सो वी हैव ओनली अ लिटिल मिल्क फॉर अवर यूज. तो ये ओनली का प्लेस यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने इधर उधर कर दिया था, तो इससे हमने थोड़ा सा रीअरेंज करके यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा है. फिर भी मुझे थोड़ा सा डाउट है, जो फाइनल एग्जामिनर है कैसा चेक करते पता नहीं, क्योंकि इसका मुझे कुछ सॉलिड आंसर, मतलब कुछ सॉलिड रीज़न उसके पीछे वाला मिला नहीं है. अगर आपको कुछ लॉजिक मिलता है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. हिज फादर इज टीचर. तो ये पढ़ने में ही थोड़ा सा अटपटा लगता है नहीं क्या. हिज फादर इज अ टीचर, इज अ टीचर होना चाहिए ना. हिज फादर इज अ टीचर. ओके. बिकॉज टीचर इज अ कॉमन नाउन, राइट. और जब हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं तो उसके आगे कुछ कॉमन नाउन से जो भी बाद वाला ऑब्जेक्ट है या जो भी हम कॉमन नाउन यूज़ करते हैं तो उसको जोड़ते हैं. सो आई होप दिस शुड बी लाइक दिस, बट अगेन यहाँ पे सिर्फ रीराइट द सेंटेंस बोला है, और हम एक नया वर्ड इसमें ऐड कर सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा डाउट है. तो ये दो जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, मतलब सब क्वेश्चन 4 5, तो इसके बारे में जो फाइनल एग्जामिनर है उनका क्या ओपिनियन है वो थोड़ा बताना डिफिकल्ट है, राइट. सो अगर आपका इस आपके मन में इस दो सवाल के बारे में क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. और इज देयर एनी अदर मेथड टू रीराइट दीज टू सेंटेंस करेक्टली. ओके. सो लेट्स मूव अहेड. राइट अ करेक्ट स्पेलिंग. तो देखो यहाँ पे कुछ स्पेलिंग वर्ड्स दिए, उसका स्पेलिंग करेक्ट करके आपको लिखना है. तो देखो जितने भी एग्जाम में लिखे थे तो सब गलत हो गए, क्योंकि ये ऐसे अटपटे शब्द है ना जो हम कभी उसका स्पेलिंग अच्छे से देखते भी नहीं है, और कभी मतलब हमें देखने की जरूरत भी पड़ती नहीं है इतनी ज़्यादा, राइट. सो मेडिटेरेनियन क्या है? ये मेडिटेरेनियन ओशन है, राइट. भूमध्य सागर जिसे हम बोलते हैं, मेडिटेरेनियन सी. सो मेडिटेरेनियन का सही स्पेलिंग देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सही स्पेलिंग है. MEDITERRANEAN. ओके. उसमें आई आता ही नहीं है. मेडिटेरेनियन NI आता ही नहीं है, NEAN आता है. ओके. सो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर गए होंगे. उसके बाद देखो कमोमोरेशन. ओके. सो कमो
कमेमोरेशन ऐसा हम जब बोलते हैं ना, तो यहाँ पे कमेमोरेशन इस तरीके से होता है। वो जो ई जो होता है ना, वो थोड़ा सा छिप जाता है यहाँ पे स्पेलिंग में। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे ही लिखते होंगे, कोमोमोरेशन, राइट। एम ओ लिखते होंगे, लेकिन सही वाला ये वाला है। ओके। उसके बाद सैल्यूट, तो सिल्यूट हो गया, ये अलग ही कुछ बन गया। तो सैल्यूट कैसे लिखते हैं देखो, SALUTE। ओके। तो ये सही स्पेलिंग है उसका। उसके बाद मेलबर्न, मेलबर्न क्या है, ऑस्ट्रेलिया में एक सिटी है, उस सिटी का नाम है। लेकिन देखो अब सिटी के नाम भी ना, जैसे इंडिया में लखनऊ है, देखो LUCK लिखते हैं उसको, लक नाउ, NOW ऐसा लिखते हैं। लखनऊ अगर हम नॉर्मली जैसे हमें स्पेलिंग कंस्ट्रक्शन सिखाया गया है, कोई भी प्रॉपर नाम हमें कंस्ट्रक्ट करना हो तो हम कैसे लिखेंगे लखनऊ, LALAU, लखनऊ ना, LAKH, इस तरीके से हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, राइट। लेकिन एक्चुअल में कैसा लिखा जाता है, LUCKNOW ऐसा लिखा जाता है। वैसे ये मेलबर्न सिटी का नाम है, तो देखो इस तरीके से लिखा जाता है, MELBOURNE। मतलब यू होता है यहाँ पे बहुत सारे, मतलब हम कभी ऐसे नाम पढ़ते नहीं है तो ये पकड़ में नहीं आते, राइट। तो इसमें यू भी है, तो देखो ये वाला सही स्पेलिंग है उसका। उसके बाद है इनॉग्रेशन, तो इनॉग्रेशन का भी देखो, INAUGU, इनॉगुरेशन होता है, वो इनॉग्रेशन बोलते हैं हम लोग, राइट। तो इनॉगुरेशन इस तरीके का उसका ये स्पेलिंग है, जी के बाद भी यू आता है। ओके। तो इस तरीके से ये करेक्ट स्पेलिंग के, राइट करेक्ट स्पेलिंग के 5 सवाल थे, 5 मार्क के लिए। अगले सवाल की तरफ जाते, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द चेंज ऑफ वॉइस। तो देखो हमने 8 9 में पढ़ा है, एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस या पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस कैसे करते। ओके। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, पहला सवाल देखो, द टेलर इज मेकिंग मी अ न्यू सूट। टेलर मेरे लिए नया सूट बनवा रहा है। सो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, राइट। इज मेकिंग बोला है ना, सो इट इज अ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो जब वो हम उसे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो उसमें देखो कैसा होता है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रिप्लेस हो जाता है। जो अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। सो देखो, अ न्यू सूट इज बीइंग मेड फॉर मी बाय द टेलर। ओके। तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, हम उसे पहले लेते हैं, उससे सुटेबल कोई हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। ये बीइंग मेड, क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है यहाँ पे। फॉर मी, ये इसकी द्वितीय हम करते हैं, राइट। सेकंड फॉर्म ऑफ द व्हाट वी कैन से, द कर्ता और द that particular doer of that sentence, okay, in that sentence, right. So a new suit is being made for me by the tailor, okay। और जो शुरू वाला जो होता है उसको by से हम जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से होता है ये। अ, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो एक बार एक्टिव पैसिव वॉइस के रिलेटेड कोई ट्यूटोरियल देख लेना, उसमें आपको ये सारे रूल क्लियर हो जाएंगे। सिंपली ये याद रखना है कि जो भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है सेंटेंस, उसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें चेंज करना होता है। और बाकी के जो भी रूल्स है एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव के, वो यहाँ पे अप्लाई कर दें। उसके बाद देखो, ओपन द विंडो, ये क्या है, एक आज्ञार्थी वाक्य है, राइट। सो आज्ञार्थी को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते तो क्या है, लेट द विंडो बी ओपन। ओके। ओपन द विंडो इसका मतलब क्या है कि खिड़की खोल दो। और उसको पैसिव में बोलना है तो क्या बोल सकते हैं हम, खिड़की खुली रहने दो। अगर किसी को आज्ञा देनी नहीं है आपको, थोड़ा पोलाइटली बोलना है, तो खिड़की खुली रहने दो, ऐसा बोल सकते हैं ना, लेट द विंडो बी ओपनड। ओके। तो यहाँ पे भी देखो, उसको ओपनड, हमको उसका एक सेकंड फॉर्म यूज करना है वर्ब का, राइट। उसके बाद देखो यहाँ पे, लेट अ केज बी मेड, ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव है, इसको एक्टिव में करना है। तो क्या करना होगा, ये जो मेड है, बी मेड, तो उसको फर्स्ट फॉर्म में लाना होगा, मेक अ केज, सिंपल, मेक अ केज, लेट को निकाल देना है। और देखो, अगर आपको थोड़ा भी एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल पता होंगे ना, तो ये सेकंड और थर्ड आपको पूरे, मतलब इसमें सब हिंट मिल जाएंगी। ओपन द विंडो ये आज्ञार्थी वाक्य है, और ये उसका मतलब उसके जैसा एक छोटा सा आज्ञार्थी वाक्य का पैसिव ऑलरेडी उन्होंने थर्ड क्वेश्चन में दिया है। तो अगर आपको ये ट्रिक समझ में आती तो आप इजीली इसको भी कन्वर्ट कर सकते थे। देखो, ओपन द विंडो का क्या आएगा, लेट द विंडो बी ओपनड, और लेट अ केज बी मेड, मेक अ केज। तो इस तरीके से है।
एग्ज़ाम में देखो बहुत जल्दी ये रूल याद नहीं आते, लेकिन उसमें जितने भी सवाल उन्होंने पूछे एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव, कुछ ना कुछ हिंट मिल जाती है, तो इसलिए सवाल भी अच्छे से पढ़ना ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। द टीचर गेव मेरी अ प्राइज़। ओके, गेव बोला है पास्ट टेंस में ना, तो देखो इसको क्या करना है, परफेक्ट पास में बदलना है हमें। अ प्राइज हैड बीन गिवन टू मेरी बाय द टीचर। ओके, तो बहुत सारे बच्चों का ये बिन छूट गया होगा, राइट। अ प्राइज हैड गिवन टू मेरी बाय द टीचर, ऐसे भी बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, लेकिन ये बिन जरूरी होता है क्योंकि हमें ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखना होता है। उसके बाद द प्रिजनर वॉज सेट फ्री बाय द जज, ऑलरेडी ये पैसिव में है, इसको एक्टिव में करना है। ओके, दो द जज ये पहले आएगा। द जज सेट द प्रिजनर्स फ्री। ओके, तो यहाँ पे एक कंफ्यूजन थोड़ा सा ऐसा है कि सेट फ्री को हमें साथ में लेना है या अलग अलग लेना है। ओके, तो इसके बारे में भी कुछ प्रॉपर रूल मुझे मिला नहीं, ढूंढने की प्रयास किया मैंने। तो आपको इसके बारे में कुछ पता हो तो बताइए, क्योंकि मैंने देखो आपके सामने दो सेंटेंस रखे हैं यहाँ पे। द जज सेट फ्री द प्रिजनर, ऐसा भी हो सकता है, और द जज सेट द प्रिजनर्स फ्री, ऐसा भी हो सकता है। तो दोनों लॉजिकली करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन इसमें से थोड़ा सा एक सेंटेंस डाइसी है, तो वो कौन सा है उसके रिलेटेड परफेक्ट रूल तो नहीं मिल पाया। तो इस तरीके से हमने ये भी एनालिसिस देखा है। आई होप आप में से बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे कि जिन्होंने भी इस तरीके से कुछ आंसर किए होंगे, कुछ इससे मैच करते होंगे, कुछ मैच नहीं करते होंगे। ओके, तो इसमें जो भी हमने अभी एनालिसिस किया, ऑलमोस्ट 90% इज़ एज पर द एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशन, बट थोड़ा सा 5-10% का हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो सेंटेंस दो थे ना, इसमें रीराइट करके किस तरीके से लिखना है, या इसमें हम कुछ नया सिंगल वर्ड ऐड कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो ये भी बहुत डाइसी सिचुएशन है यहाँ पे। तो इसलिए ये दोनों का थोड़ा सा एक confusion है कि whether it is right or wrong, whatever we have discussed, but still let's see what is the correct one. If you have any idea, do comment. And if you like the session, do share with your friend, do like our video session, and don't forget to subscribe our YouTube channel so you will get the notification of upcoming video session on time. So thank you and have a great day.